दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਰੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਡੋਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਤੇ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ PPSC ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ 'ਚ ਜਾਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ कारगर और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होएगी थोड़े आने वाले एग्जामिनेशन, चाहे वो SSC है, NTPC पेपर है, चाहे तुसी बैंकिंग लाइन एग्जाम से जा रहे हो, चाहे तुसी पंजाब दे पटवारी पेपर है, चाहे कल नूं पुलिस पेपर आउंदा है या PSSB एग्जामिनेशन कुछ भी पेपर आउंदा है, तो सब लई बहुत इंपॉर्टेंट देसी दवाई होएगी। सब तो पहला मैं रिक्वेस्ट करांगा जिन्ने भी शुभचिंतक साडे नाल जुड़े ने, प्लीज़ रिक्वेस्ट है तुहानूं इस चैनल नूं हुणे सबसक्राइब करो ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਲਾ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠਾ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈ-ਬੁੱਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ giljmentortest.com ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਈ-ਬੁੱਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾ ਸਕੋ। दोस्तों ਅੱਜ ਦੀ जो ट्रिक है खास तौर पे इंपॉर्टेंट ये रोल अदा करेगी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ क्वेश्चंस ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ क्वेश्चन मैं ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਤਰੀਕੇ ਦੇ क्वेश्चन ਹੈ, परंतु मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। एग्जांपल ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ अगर ਇਦਾਂ मैं ਕਹਾਂ कि मेरे ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਕ ਹੈ, की है मेरे को एक पार्क है और इस पार्क दी अगर मैं गल करा कि AB पहली कंध होगी, BC दूजी होगी और CD तीजी और DA चौथी है। अगर ये मेरे को 20 सेंटीमीटर है और ये मेरे को 10 सेंटीमीटर है, तो जे मैं इत्थे गल करांगा कि एरिया ऑफ ABC कितना हो गया मेरे को, तो ABCD तो तुसी कहोगे जनाब तुहाडे कोले 20 × 10 इज इक्वल कितना हो गया 200 सेंटीमीटर स्केयर हो गया। अगर ये मीटर है तो मीटर स्केयर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਇੱਧਰ ਹੈ ਔਰ 3 ਮੀਟਰ ਹੀ ਇੱਧਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਤੇ 6 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 16 ਹੋ ਗਿਆ। क्लीयर है। अगर मैं कहा कि इस पासे इनू 4 है और इस पासे भी 4 इनक्रीज किया जाता तो 8 कितना हो गया 20 ते 8 कितना हो गया 28। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनस नू तुसी अपना टाइम व्यतीत करके कंसैप्ट नू कर दिओ, हालांकि कर सकते हो। इन्हां दी देसी दवाई की हो सकती है, वो इहो जी मलम की हो सकती है, वो इहो जी पुड़ी की हो सकती है, इहो जी रामबाण की हो सकती है, जिसनू तुसी यूज करके ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਚਲਿਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 16 ਨੂੰ 28 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਏਰੀਆ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੱਸੋ ਤਾਂ 200 ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰਲਾ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 16 × 28 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਥ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਆਊਟਰ ਏਰੀਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੋ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਚਲਿਏ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, सेम अपने को क्वेश्चन आ लो जी मैं पार्क बनाता है, ठीक है, शाम ਨੂੰ चिल चुल करन इत्थे घूमन है ना,
बहुत जाने तुहाडे चों सही नीत नाल पढ़दे नहीं ते घुमदे बहुत ने, इसे करके परेशान हुंदे आ। यार एक मैं तुहाडे नाल गल साझी करांगा, बहुत हालांकि ये गल तुहाडा सोचना 100% सही है, पर इसनूं आपां पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं। पंजाब पटवारी भर्ती नहीं आ रही, भर्ती सानू पता है अगर लेट है भर्तियां तो आउणगीਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ है नहीं कि पंजाब ਨੂੰ नीलाम कर दिता जाऊगा, ਇਹਨੂੰ हरियाणे वाले राजस्थान वाले लै लैणगे, गुजरात वाले लै लैणगे, गुजरात चों पटवारी आ जाणगे, ਇਹ ਤਾਂ नहीं ना आउणगीਆਂ ਤਾਂ सरी ना। या तो फिर तुहाडे च क्षमता ते चुको तैयारी करो, तो SSC पेपर च बैठे हो, तुहाडे च काबिलियत हैगी है, तो पढ़ना है नहीं, ब्लेम भर्ती नूं करना है। तैयारी बहुत मस्ट है, तैयारी जरूरी है, तैयारी इन्नी जबरदस्त है ना, बट के रखो तैयारी। देखो यार पढ़न की ना कोई सीमा नहीं होंगी, अगर तुसी फिर रीयल कंपीटीटर नहीं है। मैं थोड़ा चैलेंज करके कहना, तुहाडे चो कोई भी स्टूडेंट हैगा ना, तुसी अगर IAS की तैयारी करो बस तो बह जाओ, फिर भर्ती नहीं आई। उन्होंने सामने किहड़ा पई है भी 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਚ ਇੰਨੀਆਂ पोस्टां तो हुण आईयां ने साल बाद, समझ रहे हो ना। तो दोस्तों सब तो पहला अपना भी किते ना किते पॉजिटिव पक्ष रखो, तैयारी भी करते रहो यार नाल नाल। दोस्तों सब तो पहला गल करते हैं कि साडे कोले यह 200 मीटर है अते ये 180 मीटर है। जे आपां इत्थे एरिया की गल करिए तो मैं इत्थे लिखांगा 200 × 180 ऑलमोस्ट कितना हो गया 18 दूना 36,000 मीटर स्केयर साडे कोल एरिया आ गया। क्लीयर, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहना कि स्ट्रीट विड्थ 10 मीटर सराउंडड फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब कि अगर आप गल करते हैं कि मेरे को इत्थे इदां करके एक सराउंडड स्ट्रीट बनाई जाती है। आ लो जी दोस्तों मैं बनाती है, ठीक है। हाँ ड्राइंग मेरी इदा ही है कि मैं मिस्त्री है नहींगा, और बल्कि मैं मिस्त्री उदा का भी है नहींगा कि पूरा मार होवां, है ना। चलिए मैं थोड़ा समझाता वा, ये इदा करके मैं चकले भी लाते हैं। आ लो जी चकले लाते तुहाडे घुमण नूं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हुण ये कहता है कि इहदी जिहड़ी विड्थ हैगी वो चारे पासे कितनी है 10-10 मीटर है। 10 मीटर इत्थे है, 10 मीटर मतलब इहदी गल कर रहे हैं मैं, क्लीयर है ना, इसकी न कि आप बाहरली साइड की गल कर रहे हैं। 10 मीटर एदी है, ठीक है, और 10 एदी और 10 एदी। हुण तुसीं मैनूं एक प्रक्रिया समझाओ, अगर मैं अंदर ले इस साइड नूं A कवां अते इस साइड नूं मैं B कवां, ये टोटल कितना आ, ये हैगा 180। अगर मैं इत्थों जाके हुण बाहर मैं इत्थों लैके ठेठ जिथे मैं ड्रॉ कर रहा लाइन और इसनों मिलावांगा, यू नो कि 10 ए हो गया अते 10 ए हो गया। टोटल मैं अगर इत्थों की गल करांगा कंप्लीट इदा करके तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई है 180 दे विच आपां 20 मिला देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 200 मीटर हो गया। समझ पा रहे हो, मतलब कि इसकी ब्रैथ कितनी हो गई है मेरे दोस्तों 200 मीटर हो गई है। हुण आपां गल करदे हां इत्थों बाहरले कोने तो लैके जे कंप्लीट तौर पर आपां इस कोने तक जावांगे तो साडे कोल कितना हो गया, मतलब कि इत्थे मैं कहांगा कि 10 मीटर ए होगी रोड और 10 मीटर ए होगी 20 मीटर। तो तुसी 200 प्रीवियसली सी 20 ऐड कर दो, तुहाडे कोले आ गया 220 मीटर। तुसी कहोगे जनाब इहदा हो गया। हुण मैं कहांगा कि बताइए एरिया, तुहाडे कोले आ गया एरिया ऑफ आउटर, मतलब कि आउटर साइड ऑफ ए पार्क, ठीक है। आउटर साइड ऑफ पार्क कितना हो जाएगा, तुसी कहोगे जी 200 तो ब्रेथ आ गई, लेंथ कितनी आ गई 220 आ गई, 000 कर दोगे तो कितना हो गया 22 दूना कितना हो गया 44, मतलब 44 मीटर स्क्वायर तुहाडे कोले एरिया आ गया। क्लीयर, समझ पा रहे हो। हुण तुसी की दसना है, ये कहंदा सवाल सानू पुछया सी एरिया ऑफ ए पाथ, एरिया ऑफ ए पाथ दसना है दोस्तों। एरिया ऑफ ए पाथ दसना है मतलब कि इस रोड का एरिया कितना होएगा, तो तुसी सीधा क्लीयर आंसर कर सकते हो कि एरिया ऑफ ए पाथ मतलब कि इस रोड का सब तो पहला गल करांगे कि आउटर साइड का एरिया कितना, आउटर साइड एरिया मतलब कि आउटर साइड्स एरिया हो गया, तुहाडे कोले माइनस किहड़ा हो गया इनर साइड मतलब कि अंदर वाली साइड का हो गया। बाहर वाला कितना है 44,000 है अते अंदर वाला कितना सी तुहाडे कोले 16 बल्कि 18 दूना 36 तो 36,000 तो तकरीबन हुण तुहाडे कोले कितना बचे 8,000 मीटर स्क्वायर बचे है मेरे दोस्तों। 8,000 आपां आंसर फाइंड कर लिया। समझ पा रहे हो, सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया कि नहीं आया। तुहाडे चों हो सकता है कोई इंटैलीजेंट स्टूडेंट्स भी होएगा, उसने भी इनू बहुत ईजिली फाइंड कर लिया होएगा, बट तुहाडे चों वो भी होएगा कि जिसनों मैथमैटिक्स ठीक ठाक मेरे वांगू घट जी आउंदी है टाइम पास करने वाला है तो उदां भी काम चलेगा। फिलहाल तुहानूं प्रक्रिया समझ आ गई। हुण इहो जिहे सवाल ते वक्त नहीं लाउणा, आपां समय नहीं लाउणा। ਇਹਦੀ देसी दवाई की हो सकती है, देसी दवाई आ तुसी लै लो जी, तुसी सवेरे शाम तुहानूं काम देगी। यह गर्म पानी नाल लै लो, ठंडे पानी नाल लै लो, दुध नाल लै लो, सुक्की खा लो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इहदा, ठीक है। नोट करो जरा ट्रिक ही है, पूरे एक मैच नहीं पूरी मैच दे विच, पूरी मैच दे विच की करना तुसी सब तो पहला एक कंसैप्ट मेरा याद रखना है
कि 2 ਇੱਥੇ मैं लिखांगा n, ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ मतलब ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਣੀ ਲੈਂਥ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬ੍ਰੈਥ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ 2n ਕਰ ਦੋ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ n ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਮੀਟਰ ਸਰਾਊਂਡਡ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਂਥ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਥ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ that is value known as of n value। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰ ਦੇਣਾ 2 ਇੰਟੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 10, ਲੈਂਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 200, ਬ੍ਰੈਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 180, ਔਰ ਆ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ 10 ਦੂਣਾ 20 ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 400, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 20 ਔਰ ਇਨਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ 400। ਆਲਾ ਜੀ 4 ਦੂਣੀ 8, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ 101% ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ इस सवाल ते ट्रिक ਨੂੰ इंप्लीमेंट करके दिखाओ और क्विकली, और पिछले सवाल नालों जल्दी आंसर होना चाहिए यार, बस फटाफट आंसर होना चाहिए। और तुहाडे जो किन्ने स्टूडेंट्स ने जिहड़े वाकई ही अपने आप को इंटैलीजेंट समझ के इहदा आंसर फटाफट दे देणगे मैनूं क्विकली यार। आपां की लिखिया सीगा 2n लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2n ब्रैकेट बंद। आ लो जी 2 नाल मल्टीप्लाई आपां करांगे किहदा, पहलां तो ये सोचो ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਹੈ। देखो आ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਡਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3.5 ਹੈ, ਤੇ 3.5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖ ਦੋ 25 ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋ 2 ਇੰਟੂ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦੋ 3.5 ਕਰ ਦੋ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 7 ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 40 ਹੈ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3.5 ਇੰਟੂ 2, ਆਲਮੋਸਟ 7 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे है सारे स्टूडेंट, समझ पा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट तुहाडे कोले कंसैप्ट आ गया कि 7 इंटू 47 कर दो, तो 7 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया, लास्ट डिजिट कितना 9 आ रहा है। अगर तुहाडे कोले डायरैक्ट इत्थे कॉस्ट ना हुंदी, और अगर तुहाडे कोले इत्थे बाई दा वे पाथ दा एरिया हुंदा, तुसीं पिछे 9 वाला चुक लेना सीगा। फिर भी मैं इस नूं इस नाल मल्टीप्लाई करांगा, कितना हो गया 7 चौका 28 दे विच 4 जोड़ांगे तुहाडे कोले हो गया 32, तुसीं कह सकदे हो 329 मीटर स्केयर है। हुण 1 मीटर स्केयर दी कॉस्ट कितनी है 27.5 है, तो टोटल इहदी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो आपां 27 इंटू 50 नाल मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई नहीं करना आउंदा खसमां नूं खाओ यार, जिवें आपां पंजाबी भाषा 'च कह दिंदे आ ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, DDF ला दो, सवाल दा आंसर आएगा, छाला मारदा आएगा। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 9 5 45 ਪਿੱਛੇ ਆਏਗਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ 4 ਬਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 9 7 63 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ 67 ਦੀ ਆਏਗੀ। 67 ਦੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਪਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਸਿਖਾ ਦੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ। मैं इत्थे की कीता, पूरे सवाल नूं मल्टीप्लाई नहीं कीता, मैं लास्ट डिजिट ते सवाल दा आंसर चुक्या, कंप्लीट हो गई। हुण तुसीं DDF दी गल करदे हो कि जनाब सानूं DDF ला के दसो जी। आ लो दोस्तों मैं इत्थे लिखिया 27.50 है, ठीक है। 9 ਨੂੰ खत्म कर दो, तुहाडे कोले किन्ने बच गए ने, तुहाडे कोले 5 है, और ये बन गया 9, तुहाडे कोले किन्ने 5 है। क्लीयर है, समझ पा रहे हो मेरे सवाल नूं? पहले सारे स्टूडेंट दसो समझ पा रहे हो ना? तो तुसी की लिखोगे, तो तुसी यही लिखोगे जनाब 5 5 25 हो गया, 25 का मतलब 7 हो गया। आ लो जी मैं सवाल का आंसर आप तीजा यही तो चुकिया सी ना कि 904150 है, 5 ते 4 9 हो गए, 9 खत्म हो गया, 7 बचे। आंसर अखा बंद करके कर दो यार, तुसी नोट करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। RS ਅਗਰਵਾਲ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੂੰਹ ਠੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ RS ਅਗਰਵਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਕ ਮੈਥਡ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਬਲਕਿ ਇਨਵਰਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਖਾਤਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਈਡ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫੀਡ है, ए दा लॉन्ग है, इन्ना ये विड्थ है। समझ पा रहे हो सवाल दे विच? सवाल दा महत्व की है वो जरा समझना है। ये कहना कि ओवरऑल पाथ है ना, जिहड़ा पाथ ओहदा एरिया पहले ही देता, तुहानूं एरिया पहला देता, तो आपां ये काम करते हैं, अपनी जिहड़ी ट्रिक सीगी ना वो ट्रिक नूं आपां इत्थे इंप्लीमेंट करते हैं। किद्दां करांगे? आपां लिखांगे 2n l प्लस आपां लिखिया सी ब्रथ, यही लिखिया सीगा ना। और इस तो अलावा देखो सवाल दे विच की है ना, इत्थे इन्हां ने कहता भी अंदर दी लेंथ अते ब्रेथ,
ਤੇ ਪਾਥ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਪਾਥ ਦਾ ਏਰੀਆ ਓਕਿਊਪਾਈ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਥ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਡਥ ਪੁੱਛ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, 2n ਕਰ ਦੋਗੇ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਆ ਲਓ ਜੀ 2n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 38 ਹੈ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 32 ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2n ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਏਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ 600 ਗਿਵਨ ਹੈ। समझ पा रहे हो? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे है। मेरा हौसला बढ़ा दिया करो कमेंट करके, ठीक है, और सबसक्राइब कर लो यार नाल दी नाल, ठीक है, इन्ना काम जरूर करो, नहीं तो फिर अगले फिर ट्रिक ट्रुक दी डोज नहीं आऊगी, फिर तो डोज कोई दूजियां तुहानू मिलणगियां। ये दोनों का जोड़ कितना हो गया, 70 हो गया। समझ पा रहे हो? इत्थों तक 70 हो गया। चलिए भाई वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। मैं इनू लिखांगा 2n, मेरे को 70 हो गया, माइनस 2n है, तो 2 मैं कॉमन चुक लांगा भाई, 2 नाल 2 कैंसल हो जाएगा, 2 कैंसल हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट तुसी कह सकते हो कि साडे कोले यह वैल्यू हैगी है, बल्कि मैं इनू कैंसल करांगा तो ऑलमोस्ट 4 टाइम ते कैंसल हो जाएगी, तो समथिंग तुसी कह सकते हो 150, और ये हो जाएगी n, और ये हो जाएगी तुहाडे कोले 35 दूना 70 माइनस तुहाडे कोले कितना हो जाना वा, ए n हो जाना। ठीक है, समझ पाए हो? किसी भी स्टूडेंट नू समझ नहीं आया, यू पीपल कैन आस्क मी सर किवें कीता है। दोस्तों इसनू इदां कर सकते हैं आपां, जिहड़ा अपने कोले 2n और 70 माइनस 2n है ना, मैनू पता है कि मैं ब्रैकेट तो बाहर लियावांगा तो 70 दूना कितना होंदा, 140n हो गया, माइनस करांगे तो 2 दूनी कितना हो गया, 4n स्केयर हो जाना। समझ पाए हो? इत्थों तक समझ पाए हो? तो तुसीं एक काम करो, इन्हां दे विचों 4 कॉमन करोगे तो तुसीं इत्थे लिख सकते हो 4 कॉमन करोगे, 4n बच गया, तो कितना हो गया, 35 चौका क्लीयर है, 35 हो गया, और ये 4 इत्थे ले लिया, तुहाडे कोले n बच जाना, क्योंकि एक n बाहर ले लिया। आही तो मैं लिखिया इत्थे, होर मैं कुछ होर तो लिखिया ना। इस 4 नाल मैं की कीता, बराबर मेरे कोले 600 है, तो मैनू कटता किन्ने, 150 बराबर हो गया। तो खत्म करना वैल्यू सीखो यार, ये तरीके तुहानू कोई होर नहीं सिखाएगा, ये तरीके तुसी हर सैशन च अपने माइंड ते जोर पा के सीख सकते हो। हुण तुसी कंसैप्ट नू किवें करना है, इत्थे तुहाडे ते डिपेंड करदा, तुसी कैलकुलेशन नू कितना जल्दी खत्म कर सकते हो। क्लीयर है, समझ पा रहे हो? चलिए हुण तुसी की लिख सकते हो, इनू इदां भी लिख सकते हो कि तुहाडे कोले अगर 35x है माइनस x स्केयर है, या तुसी इनू इंज भी लिख सकते हो कि तुसी अगर x स्केयर करोगे तो माइनस 35x कर दो, और प्लस तुहाडे कोले 150 कर दो, बराबर तुहाडे कोले 0 रख लो, फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाओगे तुहाडे कोले किन्ने बन गए ने, 20 इंटू किन्ने किन्ने दे बन गए, बल्कि 30 5, हाँ ठीक है हो जाएगा। इनू आपां कर दिए माइनस दा 30, और इनू कर दिए माइनस दा 5, बराबर तुहाडे कोले कितना हो जाएगा, 150 प्लस इज इक्वल 0 हो गया। 0 हो गया ना, तो इन्हां दे विचों एक कंसैप्ट और इन्हां चों एक कंसैप्ट कॉमन कर लो। हमेशा याद रखना, फैक्टर का मतलब है कि इत्थे इहो जे 2 नंबर चुको जिन्हां दा माइनस प्लस करन ते 35x बने, और उन्हां दा ही मल्टीप्लीकेशन करन ते कितना बने, 150 बने। मैं इत्थे माइनस दा 30 लिया और माइनस दे 5 है, माइनस दे 30 च माइनस दे 5, माइनस दे 2 तो ज़्यादा नंबर होणगे वो ऑलवेज जुड़ जाएंगे, माइनस दे 2 तो ज़्यादा नंबर होणगे ऑलवेज जुड़ जाएंगे, परंतु सिंबल माइनस दा ही रहेगा। अगर यही कंडीशन माइनस दे 2 नंबर है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो प्लस बन जाएगा, जिमें 150 बनया। समझ पा रहे हो? जिमें कि अगर मैं रखा कि 2 माइनस दे 2 है तो माइनस दे 4 कहोगे, अगर यह माइनस 2 इंटू माइनस 2 तो तुसी इहनूं प्लस दे 4 कहोगे। समझ पा रहे हो? ये चीज़ है। हुण दोस्तों इन्हां चों तुसी कॉमन रखोगे x, तुहाडे कोल x बच गया, इत्थे तुहाडे कोल 30 बच गया। क्लीयर है? इत्थे तुसी की करोगे, माइनस किन्ने चुक लोगे, 5 चुक ले, इत्थे x माइनस तुहाडे कोल 30 बच जाना, इज इक्वल 0 है। हुण तुहाडे कोले इत्थे माइनस 5 हो गया, ये बराबर 0 रखोगे तो यू कैन से दैट कि x की वैल्यू 5 होगी। x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। दूसरा सवाल साडे कोले की है कि x माइनस 30 है, और ये इक्वल 0 रखोगे तो कोले x बराबर कितना आ जाना, 30 आ जाना। समझ पा रहे हो? तो मतलब ओवरऑल सवाल का मतलब ये बनया कि इनफैक्ट दैट हुण 2 वैल्यू तो तुहाडे कोले हो नहीं सकदी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਨਸ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ 5 ਵਾਲੀ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 30 ਵਾਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ इत्थे कॉमन सेंस भी सोचना है कि ऑलरेडी साडे कोले लेंथ कितनी है, 38 ते इन्नी है, और आप अगर मल्टीप्लाई करांगे इन्हां तो ऑलमोस्ट इस बल्कि एरिया 600 है, 600 तो बहुत ज़्यादा बढ़ के हो जानी है, सो दैट कि आपां नूं मिनीमम वैल्यू दी रिक्वायर रहेगी। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर किहड़ा हो जाएगा, साडे कोले दूजा हो जाएगा। हालांकि दोस्तों मैं सवाल नूं थोड़ा जिहा लंबा करके समझाया, पर मैं इहनूं पहलां भी खत्म कर सकदा सीगा। किवें लगी तुहानूं ये शानदार ट्रिक, मैनूं जरूर दस्सिओ। मैं मिलूंगा तुहानूं नैक्सट ट्रिक सैशन दे विच, तद तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय। और दोस्तों, और जिन्ने भी शुभचिंतक ने, जिन्ने भी तुसी प्यारे प्यारे लोग जुड़े हो साडे नाल, प्लीज़ इस चैनल नूं जरूर प्यार करियो, शेयर करियो। मिलते हैं फिर एक होर खूबसूरत सैशन। ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।